السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور کل ہم نے طلاق کے بارے میں بات کیا تھا. آج ہم خلا کے بارے میں بات کریں گے. خلا اور طلاق میں بنیادی جو فرق ہے پہلے وہ بتاتے ہیں آپ کو. خلا جو ہے وہ اسلام میں عورتیں اگر یہ محسوس کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، نہ رہ سکنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. آخری وجہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی آخری وجہ یہ بتاتی ہے کہ مجھے میرا شوہر اچھا ہی نہیں لگتا، یہ اس کا آخری درجہ ہے کہ بقیہ تو شکایت کرے، شراب پیتا ہے، فلاں ہے، مارتا ہے، وہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ مجھے شوہر مجھے اچھا نہیں لگتا، لہذا میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. اگر وہ اس بات کی بھی شکایت کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ شوہر اس کو خلا دے دے. خلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے مجھے خلا دے دو اور شوہر کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو خلا دے دیا. تو جیسے ہی وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو یہ ایک طلاق ہو جائے گی. اگر اس کے بعد کبھی زندگی میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے لیے یہی شوہر مناسب ہے تو وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف پلٹ آئے گی اور نکاح کر لے گی اور رہ لے گی. تو یہ بنیادی فرق ہے کہ طلاق میں کیا ہے کہ اگر تینوں طلاق دے دی گئی تو جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے پھر وہ طلاق دے تب پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے. لیکن خلا میں کیا ہے کہ وہ شادی کسی وقت بھی چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے کر سکتی ہے اور اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے سے شادی کر لے. تو یہ خلا میں بنیادی فرق ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سب سے پہلا خلا جو ہے وہ حبیبہ بنت سہل کا ہے. ان کے شوہر کا نام ثابت بن قیس ہے. تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرے شوہر میں کوئی دینداری میں فرق ہے یا کوئی، بس مجھے اچھے نہیں لگتے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. میں اگر ان کے ساتھ رہوں گی تو میرے دل میں ان کے لیے نفرت آ گئی ہے، مطلب خوشی نہیں ہے جس طریقے سے میاں بیوی کو خوش ہو کے رہنا چاہیے. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ قد کے بہت پست تھے اور وہ ایک مرتبہ ان کے دل میں بات بیٹھ گئی. تو گویا کہ آخری وجہ میں نے جو بتائی نا کہ ہم کو پسند نہیں ہے، تو اس پسند کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ تم کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ تم کو جو انہوں نے مہر دیا ہے، باغ دیا تھا، ایک بڑا باغ تھا، تو وہ تم کو واپس کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا میں اس کو واپس کر دوں گی اور انہوں نے اس کو واپس کر دیا. ابن ماجہ میں پورا واقعہ اور بھی کئی جگہ پر یہ واقعہ نقل ہے. بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خلا ایک چیز ہے. اب خلا میں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاق من غیر باس، اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے تو آپ نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو بھی جو ہے وہ منع ہے. یعنی جنت تو جانا درکنار ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یعنی اس کو ڈسکریج کیا گیا کہ بغیر کسی وجہ سے عورت جو ہے وہ طلاق کو مانگے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی منع ہے خلا میں کہ جو آدمی نے مہر دیا ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ عورت کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو چھوڑ دے تو یہ اپنی شرطیں رکھتے ہیں کہ ہماری مہر واپس کرو، ہم کو اتنا پیسہ دو، اور بڑے بڑے کلیم ہوتے ہیں اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر لے لو اور مہر سے ظاہر کچھ بھی نہ لو. آپ نے جو مہر دیا ہے آپ اپنے مہر کیا کر لیں، واپس لے لیں، لیکن مہر کے علاوہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ کی ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے، آپ کو مہر کے علاوہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک بات منع کی گئی. حالانکہ یہ سوسائٹی میں اس وقت یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہے. پہلی بات تو خلا ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس نہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس مسئلے کو حل کرتی ہے جلدی سے، اور نہ جماعتیں جو شادی کراتی ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرتی ہیں. ایسی ہماری سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بہنیں ایسی ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں
نہ उनको शौहर ले जाते हैं और न उनको तलाक देते हैं, न उनको खुला देने के लिए तैयार है। यही वजह हुई कि ये सारे मामलात इतने खराब हुए कि औरतों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारे निजाम में खराबी आई। मौलाना खानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है तलहीलतुन नाजिदा, उर्दू में है, नाम करके अरबी उसमें है। तो अलहीलतुन नाजिदा जो किताब है, ये उसका हेडिंग है कि मजलूम औरतों को परेशानी से कैसे निकाला जाए। तो उसमें लिखा है कि अगर ऐसे हालात हो जाए तो निकाह के टाइम पर ही आप शर्त रख दीजिए, मतलब जब सब निकाह हो रहा है उसी फॉर्म में ये भर दिया जाए, औरत ये कंडीशन रख दे कि अगर तुम मुझे मारो, मेरा खर्चा नहीं दो, या तुम चले जाओ और मेरी खोज खबर नहीं लो, तो ऐसी शक्ल में मुझे एक तलाक मेरे ऊपर क्या हो जाए, तुम्हारी तरफ से पावर मुझे दिया जाए, मैं अपने ऊपर तलाक नाफिज कर लूंगी, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी आप जिसे कहते हैं। तो शौहर तलाक देने के बजाय बीवी खुद अपने ऊपर क्या कर लेगी, तलाक दे लेगी, ताकि मैं अपना मसला खुद हल कर लूं। तो हो क्या रहा है कि ये तमाम मसाइल की वजह से परेशानियां हो रही हैं, लोग खुला नहीं देते हैं। भागा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और भी दूसरी जगह, कि जब औरतें खुला तलब करें तो मर्दों को चाहिए कि खुला दे दें। यकीनी बात है कि जो शादी का मामला है ये दोनों के समझौते का मामला है। अगर मियाँ बीवी खुशी खुशी नहीं रह रहे हैं और आप जबरदस्ती उसको रखना चाहेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि रोजाना आपको घर में लड़ना है। और शादी का मकसद कुरान मजीद ने क्या बयान किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। तो अगर सुकून के खिलाफ शादी चली गई तो अब दोनों का रहने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा इस्लाम इस बात को पसंद करता है कि खुला मांगा जाए। तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि खुला अगर मांगा जाए और हकीकत में कोई वजह नहीं हो तो औरत गुनहगार होगी, लेकिन फिर भी खुला क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। अब जब तलाक हो जाती है तो या निकाह या खुला हो जाती है तो सबसे बड़ा मसला आता है इद्दत का। इद्दत में क्या चीजें मना है? इद्दत जो है उस मुद्दत को कहते हैं कि औरत जो है वो तलाक के बाद या ये शौहर के इंतकाल के बाद, औरत को 3 महीना तो तलाक के बाद और 4 महीना 10 दिन वफात के बाद इद्दत गुजारनी चाहिए। ये इद्दत का जो असल मकसद है वो आपको बता देते हैं। असल मकसद इद्दत का ये है कि अगर पहले शौहर से प्रेगनेंसी है, हमल है, तो वो क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि ये तलाक दे और तलाक के बाद दूसरे दिन कोई आदमी कर ले, शादी कर ले। अब शादी होने के बाद बच्चा किसका हो इसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये 3 महीने में क्लियर हो जाएगा कि ये औरत हमल से है या नहीं है। अगर हमल से है तो फिर उसकी इद्दत कहाँ चली जाएगी? 3 महीना नहीं रह जाएगी, बल्कि जब बच्चा पैदा होगा उस वक्त उसकी इद्दत खत्म होगी। समझ मेरी बात? तो असल क्या है उसको इस टेक्निकल वर्ड में कहते हैं इस्तिब्राए रहम, यानी औरत का जो पेट है वो पाक है, मतलब उसके अंदर बच्चा नहीं है, इसलिए इद्दत गुजारने की बात कही गई है। अच्छा, अब इद्दत में जो चीजें मना की गई हैं, कुछ औरतों ने तो अपनी तरफ से हजारों चीजें मना कर लिया। वो औरतों ने जो मना किया उसकी कोई दलील नहीं। वो क्या है, औरतें घर में बैठा देती हैं, कमरे में पैक कर देती हैं, जो लोग आने जाने वाले हैं उनसे मुलाकात, ये सारी बातें गलत हैं। घर में वो आम औरत की तरह ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम आम औरत की तरह घर में रहेगी। क्या नहीं करेगी घर में? जो चीज वो अपने शौहर के लिए करती है सब कुछ छोड़ देगी। वजह क्या है? ऐसा ना हो कि ये टिप टॉप से रहने लगे और इद्दत के दरमियान में ही कोई मर्द से इसका ताल्लुक हो जाए। तो इसलिए उसको जो है कहा गया है कि वो तमाम जीनत को छोड़ दे। इसमें सुरमे का लगाना है, इसमें अगर तेल का लगाना है, खुशबू का लगाना है, मेहंदी का लगाना है, जेवरात का पहनना है, चटक भड़क जो है वो कपड़े का पहनना है, ये तमाम चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मना है कि औरतें जो है इद्दत वाली ऐसा न करें। अच्छा, इसी तरीके से औरतों का बाहर निकलना मना है, यानी इद्दत के दरमियान में औरत अपने शौहर के घर को न छोड़े, बाहर न निकले। अगर मजबूरी है, जैसे इलाज के लिए जाना पड़ा है, तो दिन में जाए, रात में फिर आ जाए। या ये कि कोई औरत ऐसी है कि जिसको शौहर की तरफ से कोई पैसा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, शौहर तो मर गया,
مثال के तौर पर, तो अब वो कहाँ से कमाए, लिहाजा वो कमाने की गरज से जैसे कोई जॉब करती है औरत, तो ऐसी शक्ल में फिर जो है पहले कोशिश करेगी कि जॉब से छुट्टी मिल जाए. अगर जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है तो फिर ऐसी शक्ल में औरत इद्दत वाली क्या है, जॉब के लिए जा सकती है. लेकिन जॉब के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि जॉब के लिए जाए और अच्छा चलो अब तो मार्केटिंग भी कर लेते हैं, अब जब बाहर ही निकले हैं तो चलो अम्मी के भी होकर आ जाते हैं, चलो अपनी सहेली से भी मिल लेते हैं. ये सब नहीं करेगी, जॉब से जाएगी और जॉब से घर सीधे वापस आ जाएगी. ये उस औरत के लिए जिसके लिए नान नफ्के का मसला खड़ा है. और अगर नान नफ्के का मसला है घर में तो फिर घर छोड़ना चाहिए. लेकिन हम लोगों के यहाँ जो किया जा रहा है कि वो एकदम उसको, मतलब मिसाल के तौर पर पहले वो घर में बैठती उठती थी, बहुत से लोग रिश्तेदार आते थे, अब वो सारे रिश्तेदारों से पर्दा समझ रही, पर्दा हो गया है. पर्दा जो पहले से था वही आज भी, इद्दत की वजह से कोई पर्दा नहीं बढ़ता है. बाद लोग समझते इद्दत की वजह से कुछ पर्दा बढ़ गया, इद्दत की वजह से कोई पर्दा नहीं बढ़ता है. जिनसे पर्दा करना पहले से लिखा है उन्हीं से पर्दा करना आज भी है. तो इद्दत में इन चीजों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है. तीसरी चीज जो है वो ये है कि मियाँ बीबी के बर्ताव में क्या चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया. जो मियाँ बीबी आपस में रहते हैं घर में, तो कदीम जमाने से अल्लाह ताला ने मर्दों को औरत के मुकाबले में ताकत दी है. तो ताकत का मुजाहरा सही जगह नहीं करता है, जुल्म के खिलाफ नहीं करता है, बल्कि वो ताकत का मुजाहरा क्या करता है, उन लोगों पर करता है जो उनसे कमजोर है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले भी और आज भी लोग अपनी बीवियों को मारते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे सख्त मना फरमाते थे कि कोई आदमी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाए. हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत पर और कभी भी किसी गुलाम पर, नौकर पर आपने हाथ नहीं उठाया पूरी जिंदगी. तो सबसे पहली चीज जो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि मियाँ बीवी एक साथ रहें और फिर वो किसी को पर हाथ उठाएं. अगर बीवी बदकार है और कभी ऐसा गुस्सा आ ही गया और बदकारी को तंबीह के तौर पर अगर मारने की बात हुई तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि अगर हाथ भी उठाया जाए तो चेहरे पर नहीं मारा जाए. और लेकिन वही उसकी भी शर्त क्या है कि बदकिरदारी वजह हो, छोटी छोटी बात की वजह से घर में जो होती रहती है, चाहे देर में दे दिया, खाना देर में दिया, नमक ज्यादा होगा, ये सब तो कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में. लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी खराब हो चुकी है कि ये सारे नताइज हमारे बरामद होते रहते हैं. मुस्लिम शरीफ की रवायत है, ऊपर वाली रवायत इब्न माजा की, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि गते मुतलक है कि एक दूसरे से बात करना छोड़ दें. तो सबसे जो पहली नाराजगी होती है घर में कि आदमी मियाँ बीवी घर में रहते हैं और बात नहीं करते, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है. कि मोमिन से कोई मोमिन मर्द, मोमिन औरत या मोमिन मर्द एक दूसरे से बात करना छोड़ दें. ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह, तो ये मुस्लिम शरीफ की रवायत में तो मुतलक है, लेकिन दूसरी जगह ये भी है कि जब मोमिन की बात छोड़ देता है तो उसकी कोई इबादत जो है ना वो अल्लाह के दरबार में रजिस्टर नहीं की जाती है जब तक कि वो बात नहीं कर लेते हैं. अब दोनों आदमी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मैं सही हूं. यकीनी बात है कि एक सही है, एक गलत है. जो अपने आप को सही समझ रहा है, जो दोनों से सही समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझते हुए बात जरूर करते रहना चाहिए. हो सकता है आप कहें कि मौलाना बात करने का क्या फायदा, दिल मिल ही नहीं रहा. दिल मिले या ना मिले, पहले जबान आप मिला लीजिए. जब आप उसका एक तरीका है कि आप उससे सलाम करें. सलाम एक ऐसी चीज है कि अगर आप मुस्तकिल किसी आदमी से सलाम करते रहेंगे, नफरत अपने आप क्या होती है सलाम के जरिए खत्म हो जाती है. लेकिन ये कि बात न करना ये बहुत बड़ा गुनाह है. मियाँ बीवी का आपस में बात नहीं करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है. ज्यादा इससे सबसे पहले, और मामला यही से खराब होता है कि सबसे पहले घर में रहते हुए दोनों आदमी मुंह फुलाए रहते हैं और दोनों आदमी जो है बात नहीं करते. उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है और फिर वही बच्चे जब उनकी शादियां होती तो सेम वही हरकत आपकी वजह से वो दूसरे लोग भी करते हैं. लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और मियाँ बीवी कभी भी बात करने से नहीं छोड़े. इसी तरीके से औरत के बारे में खासकर कि औरत हो या मर्द हो, वैसे तो लेकिन औरतों के लिए खासकर कहा गया कि औरतों को ताना ना दें. देखिए किसी आदमी को एक झापड़ मार दें वो अच्छा है, लेकिन चलते फिरते जो कमेंटबाजी होती रहती घर में ये बहुत खतरनाक चीज है. ताना देना गहना बहुत बुरी चीज है.
कुछ छोटी छोटी बात पर हम अपनी बीवी को ताना दे देते हैं, कभी उसके घर वालों पर कमेंट करते हैं, कभी उसकी जात पर कमेंट करते हैं, कभी वो हमारे ऊपर कमेंट करती है। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये कूल वार होती है, धीरे 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 आगे जाकर के एक बड़ी लड़ाई क्या होती है, बन जाती है। लिहाजा ये तानेबाजी कतई नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अबू दाऊद और इब्न माजा की रवायत है। इसी तरीके से बुखारी की रवायत है कि औरत को अल्लाह ताला ने औरत के अंदर टेढ़ापन रखा है। हुजूर ने मना फरमाया कि टेढ़े को सीधा करने की कोशिश नहीं करना। टेढ़ापन जो रखा गया है वो टेढ़ा, हम जब से ये कहते हैं उस टेढ़ेपन को कि औरत के अंदर ये ऐब है। अल्लाह ताला ने जब टेढ़ापन रखा है तो अल्लाह ताला की किसी कारीगरी में कोई ऐब नहीं होता है। जब उसने टेढ़ा रखा है, मैं मिसाल दिया करता हूं कि मेहराब टेढ़ी होती है, उस टेढ़ेपन होने के बावजूद उसके अंदर एक खूबसूरती होती है। अगर उस मेहराब को ऐसे बना दिया जाए सीधे तो उसके अंदर से खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो ये हर टेढ़ा बदसूरत है, ये गलत बात है। औरतों के अंदर जो टेढ़ापन रखा गया है ये अल्लाह की जानिब से रखा गया है और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत है कि आप उस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश नहीं करें। अगर आपने सीधा करने की कोशिश की तो नतीजा क्या निकलेगा? हुजूर ने फरमाया कि वो टेढ़ी चीज टूट जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? तलाक हो जाएगी। वो टेढ़ापन है क्या? कहा पे जाता है बार बार कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई, वो टेढ़ापन अल्लाह ने रखा क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये बता दें आपको कि जब किसी की औरत के अंदर कोई खराबी होती है तो शैतान उसके टेढ़ेपन को शौहर से खूब क्या करता है? बिन मारता है। और चाहता ये, क्योंकि वो चाहता है कि इसको सीधा किया जाए, और सीधा करने का मतलब क्या हो जाए? तलाक हो जाए। ज्यादा शैतान का ये काम होता है। ये जो टेढ़ापन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर रखा है वो आपको चंद मिसालें देकर समझाता हूं, बात हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। एक टेढ़ापन ये है उसकी फितरत में कि वो चाहती किसी दूसरी औरत की तारीफ उसके सामने न की जाए। ये उसका टेढ़ापन है। अगर आपने उसके सामने कहा फलां औरत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना पकाती है, उसका मेंटल घूम जाता है। ये जो उसकी नाराजगी है, आप इसको नाराजगी नहीं समझे, ये उसका टेढ़ापन है। ये ऐसा क्यों रखा है? उसको डाउट क्या होता है कि ये आजाद पंछी है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं उड़ रहा है। वो आपको आपके की फितरत के टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए इसको टेढ़ा रखा गया है। तो एक चीज बुनियादी तौर पर यह है कि वो किसी भी औरत की किसी भी तरह की तारीफ सुनना, आप उसके सामने किसी औरत से खूब हंस करके खूब खुश होकर के बात करें, उसकी जो नाराजगी है वो उसके टेढ़ेपन की दलील है। नंबर एक। नंबर दो, सारा ताल्लुक उसके उसी जात से है। दूसरी चीज, मिसाल के तौर पर आदमियों की बादमियों की आदत है देर तक घर से बाहर रहना, बगैर बताए हुए 4-5 घंटा आउट रहना। उस पर वो बार बार सवाल करती, कहाँ थे, कहाँ गए थे, क्या करते हैं। ये जो उसका टेढ़ापन है, ये टेढ़ापन की भी वजह वही है कि आप आजाद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजाद पंछी बाहर जा रहा है। ये उसकी वजह से उसके अंदर ये टेढ़ापन अल्लाह ताला ने रखा है। ये बुनियादी वजह है। घरेलू मामलात में औरत चाहती है कि उसको आप पूरा बॉस माने। मतलब घर है, जैसे सोफा कहाँ रखा जाए, घर का पर्दा कैसे बनाए, किस कलर का आवे, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करें। ये वो होम मिनिस्टर है, उसको होम के अंदर पूरी खुद मुख्तारी दें। जितना ज्यादा आप उसको इसमें आजादी देंगे उतना ज्यादा वो खुश रहेगी। अगर आपने उस मामले में भी इंटरफेयर किया, मुदाखलत की, तो नतीजा निकलेगा कि उसका समझती है कि मेरी होम मिनिस्ट्री में डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने रखा है। लिहाजा उसको क्या है कि इस बात पर टेढ़ापन आएगा, आप उसको बर्दाश्त करते रहें। अच्छा, औरत के मिजाज में खुद को मजबूत करने का भी टेढ़ापन है। यानी चाहती है कि मैं इकोनॉमिकली मजबूत रहूं। वो आपसे कहेगी, जेवर की डिमांड करेगी कि हमारे लिए अंगूठी बना दीजिए, हमारे लिए कर दीजिए। आप पैसा देंगे, उस पैसे में बचाने की कोशिश करेगी। ये सब औरतें करती रहती हैं। ये उनको क्या है, उनको इकोनॉमिकली मजबूत होना है। मजबूत क्यों होना है? उसकी दो वजह है। एक वजह तो उनको ये खतरा रहता है कि अगर ये मुझे छोड़ दे तो मेरे हाथ में कुछ पैसा रहना चाहिए। ये उसको हर वक्त उसको ये डाउट खींचता रहता है। और दूसरी बुनियादी वजह यह है, वो अपने आप को मजबूत रखना चाहती है कि हमारे शौहर का हाथ बहुत खुला हुआ है, कभी इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास कुछ पैसा रहे ताकि मैं ऐसे मौके पर काम पे ले आऊं। तो इस बुनियाद पर अगर वो माशी लिहाज से मजबूत रहना की कोशिश कर रही है तो आप इतना हिसाब टाइट नहीं लें कि मैंने पिछले महीना 2000 रुपए दिया था,
तुमने 1800 में पूरा कर दिया, अब के तुम 2500 मांग रही हो, थोड़ा सा इसमें क्या है, उसके टेढ़ेपन को सामने रखें और उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें। इसी तरीके से वो जो देवर की डिमांड करती है देवर बनाने की, तो अब उसके बाद क्या होता है, देवर रखा रहता है, औरत के पास रहता है। मर्द क्या कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आवे तो सबसे पहले उसके देवर के ऊपर हाथ साफ करना चाहता है। उस पर वो क्या कहती है, क्योंकि उसको सोने से प्यार है। अब वो सोने से प्यार होने की वजह से वो उसका टेढ़ापन है, सोने से प्यार होना। आप उसका सोना बेचना चाह रहे हैं, अब वो उसमें दोनों में क्या होती है, लड़ाइयां होती हैं। तो उसकी शक्ल ये है कि हालात खराब हो तो समझाने की कोशिश करें। वो जो सोना न बेचने पर नाराज हो रही है, हकीकत में फितरी टेढ़ापन है। आप उसको सीधा करने की कोशिश नहीं करें, समझाने की कोशिश करें कि हालात ऐसे हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई शक्ल नहीं है, मैं अगर सूद पर पैसा लूंगा तो सूद इस तरह से चढ़ता रहेगा। इस तरीके से समझा करके मामले को बनावे। लेकिन आपने मांगा और उसने इनकार कर दिया तो आप फौरन जो है वो गर्म नहीं हो जाए, बल्कि समझे कि ये इसका टेढ़ापन है जो इसके सोने से मोहब्बत की शक्ल में इजहार हो रहा है। ऐसी चीजें हैं बात जो टेढ़ेपन में शुमार होती हैं, उसको सीधा करने की